Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show and to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Premji is here with us today to help us all understand compatibility for personal and professional life, how you can make sure that it works for you and you do very well in your life. So let's find out more on this. So Premji, how important is compatibility between two people according to Vedic astrology? देखिए, compatibility is very important because relationship जो है that's the most important part in our life. Right. तो जब भी दो लोग चाहे वो शादी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे किसी तरह का भी काम करते हैं, अगर they are not fully compatible तो कोई भी चीज़ आप लाइफ में पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाते. जी. So that's why the compatibility is the main thing when you get married. तो आपके जो birth charts हैं, because everybody belongs to a different planet actually. Right. हर आदमी एक ascendant के नीचे पैदा होता है, हर आदमी का एक rising lord है, तो वो ascendant has to sync with the other person ascendant too. अगर वो alignment stars की नहीं है वैसी, तो फिर वो marriage या कोई भी partnership है वो कभी काम नहीं करती. So then Premji, to understand this, can the compatibility analysis help personal and professional life as well? And will astrology be able to tell a partner at work whether they are good for them together as a team or they're not good to work together for work? 100%. देखिए, जब हम शादी करते हैं तो we see 36 points, 36 गुण देखते हैं जिसके अंदर हम, जिसमें से 3 चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखी जाती हैं. एक होता है भगूत, जिसे हम बोलते हैं कि ये मैरिज जो है लाइफ लॉन्ग कंपैटिबिलिटी रहेगी, कि उनमें अलाइनमेंट रहेगी आपस में. जी. एंड द सेकंड थिंग देखते हैं नाड़ी, जिसे हम देखते हैं जिससे हम हमारे बच्चे, अच्छा. हमारी आगे की जनरेशन कैसे होगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. राइट. एंड थर्ड थिंग देखा जाता है कि दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं है. अगर या तो दोनों मांगलिक होने चाहिए या दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट यू सी इन द मैरिज के अंदर. तो अगर ये 3 चीज़ें अलाइंड हैं आपके बर्थ चार्ट में बिफोर द शादी से पहले, तो देन यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग फाउंडेशन ऑन इट एक्चुअली. एंड अगर सेम थिंग अगर आप पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ बिजनेस में, जो आपका 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप, तो उसमें ये जो है पॉजिटिव स्टार्स होने चाहिए. राहु नहीं बैठा होना चाहिए, मून नहीं होना चाहिए वहाँ पे सूरज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जुपिटर नहीं होना चाहिए. तो अगर आपके 7th हाउस में इस तरह की स्टार्स की अलाइनमेंट है, तो देन आपको अकेले काम करना चाहिए. जैसे ही आपका पार्टनर आएगा तो या तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं, या फिर वो डिस्प्यूट में, या फिर वो काम ही नहीं चलता कभी. तो बिजनेस ही फ्लॉप हो जाएगा. बिजनेस ही फ्लॉप हो जाता है. Wonderful. Thank you, Premji. So hope all of you have also understood that being compatible not only in personal life but also in professional life is very, very important. But time now for us to check your email to understand from Premji how he can help you and guide you with his remedies. So let's find out who sent us the first email for today. और प्रेम जी पहली ईमेल जो आई है, दिस इज फ्रॉम गौरव चौहान. डेट ऑफ बर्थ इज April 18, 2001. टाइम ऑफ बर्थ इज 11:45 in the morning. Place of birth is Pathankot, Punjab. He says he's very confused about his career because he wants to join the army, or he says he wants to go abroad and find a job for himself. So he doesn't know what would be more successful for him to do, being in the army or joining a job and going abroad, leaving the country, and he wants your help and guidance. देखिए गौरव चौहान, अगर आप 18 अप्रैल 2001, इनका 11:45 AM पठानकोट इंडिया का बर्थ है जी. इनका कैंसर राइजिंग है और इनका जो मून साइन एक्वेरियस है, कर्क लगन है और कुंभ राशि है. और कर्क लगन का लॉर्ड होता है मून जी. और राशि का लॉर्ड है शनि. एंड ये राहु की दशा इनको चल रही थी जो कि इनकी 3 मई से ख़त्म हो गई. ही हैज़ एंटर्ड ए जुपिटर दशा विच इज़ बेसिकली द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ. तो इनकी कुंडली का लॉर्ड है मून. मून जो है बेसिकली वो ओवरसीज़ विदेश से जुड़ा होता है. मून जो है वो जो मेडिसिन, साइंस, फाइनेंस या टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा होता है. तो इनको जो ओवरसीज़ में जाके अपने करियर को देखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जब ये आर्मी जो है वो मार्स से जुड़ा हुआ है, मंगल का वो जो काम होता है, अथॉरिटी जिसे बोलते हैं, वो इनके फेवर में नहीं है. अच्छा. एंड ऑलरेडी ही हैज़ स्टार्टेड ए गुरु दशा
विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर हिम। जो इनके बर्थ चार्ट में इनके इनकम के एरिया में बैठा हुआ, विच इंडिकेट्स कि अगर ये ओवरसीज़ जाएंगे तो बहुत बड़ा सक्सेस देखेंगे। बर्थ चार्ट में इनके काल सर्प दोष है, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है इनको। जैसे लाइफ में जिस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, आदमी डबल माइंड रहता है हमेशा, और उसका फिर रिलेशनशिप में भी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। So then Premji, what is it that he should do as a job if he wants to go abroad that you recommend options for him, and any other remedies you recommend? देखिए, एक तो इनको जो है येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में, उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड है वो स्ट्रांग हो जाए। लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाए। मंडे के दिन इनको वेजिटेरियन रहना चाहिए। अगर वेजिटेरियन मतलब या तो ये फास्ट भी कर सकते हैं, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। और काल सर्प दोष की इनको पूजा करानी चाहिए। किसी भी दिन, जिस दिन सोमवती अमावस होती है, उस दिन टेंपल में जाके अगर ये काल सर्प दोष की पूजा कराएं तो इनकी जो फोकस, जो इनका रिलेशनशिप, वो सब चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब शुड ही लुक फॉर प्रेमजी इफ ही हैज टू गो अब्रॉड? देखिए, इनको टेक्निकल साइड में अपने करियर को करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ, उसमें इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that he foresees your future not being in the army but being abroad and getting into some kind of technical background, technical business. You could get a job, you could do a course over there and find yourself being very successful in that, and do the remedies that Premji has told you, especially the Shivji ki puja on Monday. Try and stay vegetarian, and wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries. Premji, what are the predictions for Aries for this week? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं वो आपके साथ खुश रहेंगे। आप बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेंगे इस वीक के अंदर, ऑफिशियली एंड डोमेस्टिकली, फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। हार्ड वर्क और डिवोशन से आप जो भी मैनेज करना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। खर्चों की वजह से आप थोड़े अपसेट रहेंगे इस वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, कुछ लोग जो हैं वो ट्रैप्ड रहेंगे गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रबल्स को लेके। जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको रेज भी मिल सकता है। कुछ लोगों को नई जॉब की ऑफ़र भी आएंगी। बस अपना फोकस बना के रखिए अपने फाइनेंशियल एरिया में, और स्पेशली लीगल इश्यूज़ को लेके। जो लोग बिजनेस में हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, पैसा आपका वेस्ट हो सकता है वर्थलेस एक्टिविटीज़ के अंदर। आप फ्रेंडली बन जाएंगे ऐसे लोगों के साथ, स्ट्रेंजर के साथ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ लोगों का जो आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से, वो रुक सकता है इस वीक के अंदर। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। ज़्यादा काम करने से आप थोड़े परेशान भी रहेंगे इस वीक के अंदर। एंड कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो आपका काम है वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाला है। आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ें जैसे आपकी तरफ आ रही हैं, सक्सेस मिलेगा। जो लोग कंपटीशन, जो टेस्ट देना चाहते हैं इस वीक के अंदर, जो लीगल डिस्प्यूट्स आपके चल रहे थे, वो भी आपके फेवर में सेटल हो जाएंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द वंडरफुल रेमेडीज। और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे एंड वी टॉक मोर ऑन द टॉपिक फॉर टुडे, बट टाइम नाउ फॉर अस टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सी यू राइट आफ्टर दिस। Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here with us in the studio today to help us all understand how important compatibility is not only in your personal life but also your professional life. So let's find out more on this. So Prem ji, which planet and houses do we look for checking compatibility between two people? Say first is for marriage and then it's for business or partnership. देखिए, जब 7th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप, तो 7th हाउस जब शादी के टाइम पे तो दो लोगों के चार्ट्स को अलाइन किया जाता है कि उनके 7th हाउस में कौन से स्टार्स हैं। कहीं राहु तो नहीं बैठा हुआ, कहीं मून तो नहीं है, कहीं मार्स तो नहीं है। राहु बैठ जाए तो मल्टीपल मैरिज है, मंगल बैठ जाए तो इट मीन द पार्टनर इज़ मंगलिक। अगर मून बैठ जाए तो इट मीन्स मल्टीपल शादी हो सकती है। अगर चंद्र और शनि साथ में बैठ जाए तो विष योग भी बन जाता है। चंद्र राहु साथ में बैठ जाए तो लूनर इक्लिप्स भी बन जाता है। सूरज बैठ जाए तब भी वहाँ पे मैरिज में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड एट द सेम टाइम कि आपका 7th हाउस आपका कैसा है। कई बार क्या होता है कि इफ़ यू हैव ए राहु इन योर 7th हाउस, अगर आपके पार्टनर की कुंडली में भी 7th हाउस में राहु है तो वो दोनों को क्रॉस कर जाता है।
बिजनेस में हम कैसे देखते हैं कि इफ़ योर बिजनेस हैज़ अ राहु इन द 7th हाउस एंड योर पार्टनर जो आपकी स्पाउस है उसकी कुंडली में भी राहु है, तो इट मीन मैरिज इज़ ओके। बट अगर आपका आउटसाइड बिजनेस पार्टनर है विच इज़ योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, सो इफ ही डजंट हैव इट and you have a Rahu in the 7th house, it means that partnership is not going to work. Right. So make sure कि आपकी जो partnership जो आप business जब भी करते हैं, that is also you have to see compatibility with the two people too. It's not about the marriage. Partnership is also a marriage too, because whenever we start something, we think for the lifelong. Right. कि हम ये business कर रहे हैं या कोई property खरीद रहे हैं या अभी कोई हम corporation form कर रहे हैं तो हम इसको long run लेके चलेंगे. तो this is how you see it, because दो लोगों की alignment 7th house में होना is very very important. So not only for marriage but also for partnership. Also for the partnership. So then Premji, like they do a gun match for two people getting married. Do they do something similar for getting a business partner as well, like a gun match or something, or they just watch out for the planets? नहीं, देखिए पार्टनरशिप में आपको गुन मैच नहीं देखना, बिकॉज पार्टनरशिप इज ओनली फॉर द बिजनेस. Okay. गुन मैच इज ओनली फॉर द मैरिज. आपकी जनरेशन कैसी होगी, आपकी वाइफ के आपके आगे बच्चे कैसे होंगे. Right. सो पार्टनरशिप में सिर्फ आप 7th हाउस को देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, और असेंडेंट देखा जाता है कि दोनों सेम अलाइन पे हैं. Okay. क्योंकि असेंडेंट अगर आपका मून राइजिंग है और किसी का कैप्रिकॉन राइजिंग है, वन इज मून अदर इज अ सैटर्न, तो दोनों मिलकर विष योग क्रिएट करेंगे. इट मीन दोनों दूसरे को नेगेटिव, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. इफ यू आर अ मून राइजिंग and your partner is a Jupiter rising, Jupiter and moon makes the basically गज केसरी योग. It means दो लोग मिलके बहुत बड़ी organization या बहुत बड़ा business करेंगे. So ascendant and the 7th house has to be synced when you're doing a business or any kind of a partnership with anybody. Wonderful. Thank you, Premji. So all of you also understood how important it is to be compatible. Watch out for the 7th house, making sure it aligns and matches with the partner. Of course, for the marriage is a good match, not for partnership. So you need to do these two aspects separately. But time now for us to understand from Premji the rest of the zodiac signs. So let's find out the predictions for the next zodiac sign, Leos. Premji, what about Leos for this week? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे थे वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन किसी की मदद से होंगे. आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको पूरा ड्यू मिलेगा. चैलेंजेस आएंगे आपको इस वीक के अंदर, पर आप उसमें से भी निकल जाएंगे. मैरिड एंड डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कुछ लोगों को, बट आप काम पूरा मेहनत से करेंगे जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिलेगा. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए एक समवन जो कोई क्लोज है आपके, वो आपको बिट्रे कर सकता है. कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी. जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा. नया वेंचर जो नया कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा समय है प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए. आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे इस वीक के अंदर. ये अच्छा समय है टू इन्वेस्ट इन टू नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. कोई भी जो रियल स्टेट इश्यूज आपके चल रहे थे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. एंड स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो बिजनेस एंड पार्टनरशिप्स है वो काफ़ी आगे चल के फ़ायदा देंगी. जो स्टूडेंट जो है जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगा. खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, बस अपने टेम्पर को थोड़ा चेक करके रखिएगा और किसी के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिएगा. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस वंस अगेन. और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक. वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here with us in the studio helping us understand the compatibility between relationships and partnerships. How important is that? And Prem ji mentioned you have to look at the 7th house. So let's find out more on this. So Prem ji, are there any remedies that one can do to improve the compatibility between the two partners? Supposing they're already in business and they realize they don't get along, or the business is not doing that well, can they do something? देखिए there are definitely remedies to correct the 7th house. You can always do that. But at the same time जैसे अब दो लोग पार्टनरशिप पे हैं तो वो अपने बिजनेस अपनी फैमिली के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. कि जो लोग बेसिकली जैसे अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन की हाउस हर स्टार्स आर आल्सो अलाइन्ड टू. बट यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई द 7th हाउस बेसिकली. And you can always do the remedies which will, but it's better to जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले से ही उसको देख के करना चाहिए. बिकॉज अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तभी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं चलता.
but you can always do a remedies and you can always make some adjustments basically to see the positive outcome. Instead of just closing the business. और no, you shouldn't close your business. Sometime क्या होता है कि हम गलत बिजनेस में भी होते हैं. अच्छा. Because अगर आपका ascendant moon है और आप कुछ और जैसे आप ऑयल काम में चले गए, this is which is a work of Saturn, Right. तो वो चलेगा नहीं, आपको backfire करेगा हमेशा. So business helps to be also aligned with your birth chart too. You can always rectify the 7th house at the same time. You can always correct your 7th house, जिसकी वजह से आपका फिर काम जो business है वो positive हो जाएगा. Successful हो जाएगा. And Premji, just to understand as a closing for this topic, is there also significance of numerology when checking compatibility for partnerships? Of course, जो आपका date of birth है, that your number has to basically align with your partner's number as well too. Because sometimes जो है numbers जो है basically वो भी negativity create करते हैं. आपके जो business का जो नाम है दोनों partners के नाम से assign होना चाहिए. आपके जो business की location का number है वो भी assign होना चाहिए. आपका जो काम जो है जो आप करते हैं वो भी नंबर से जुड़ा होता है. If you are number 6, you are doing with property work, construction में चले जाते हैं. If you are number 1, which is a number of sun, तो sun government से जुड़ा है, वो authority से जुड़ा हुआ है. So each and every number has its own meaning. So numerology plays a very very big basically role also in the partnership too. कि दोनों partners के numbers भी align होने चाहिए. Thank you, Premji. So hope all of you also understood that numbers play a big game in understanding your compatibility, not only in marriage, but also in partnership. But time now for us to understand from Premji, who sent us the next email and what could be the remedies for that. So let's find out. और Premji, अगली email जाए है. This is from Abha Sharma. Her date of birth is October 3rd, 1991. Time of birth is 8:59 in the morning. Place of birth is Solan. Says that she's in a government job and she wants to know whether she'll find herself working in a private job only. Second, she's unmarried right now and she wants to know, does she have marriage in her future or she'll just be, not getting married and be a spinster for life, and wants your help and remedies. देखिए आभा शर्मा, अगर आप 3 अक्टूबर 1991 8:59 AM सोलन हिमाचल प्रदेश इनका बर्थ है. इनका लीब्रा राइजिंग है और इनका जो मून साइन है कैंसर है. तुला लगन और कर्क राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है इनका शुक्र जो है इनके बर्थ चार्ट में गुरु के साथ इनके 11th हाउस में इनकम के एरिया में बैठा हुआ है. शी हैड स्टार्टेड ए शुक्र दशा लास्ट ईयर जनवरी से, विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ एक्चुअली. कहते हैं जब लग्नेश लॉर्ड की दशा चल जाए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है. और कुंडली में इनके सूर्य मंगल बुध साथ में बैठे हुए हैं, तो कहते हैं जब भी सन मरकरी के साथ होता है, सन एंड मरकरी गिव्स यू मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्चुअली. सो तो इनकी जो गवर्नमेंट से जुड़ी जो जॉब में इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा आगे चल के. एंड अब शुक्र रिलेशनशिप लॉर्ड भी है, तो अभी इनकी शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर जनवरी से, जो कि 2023 मई तक रहने वाला है. उससे पहले वो इनके शादी के योग को भी एक्टिवेट कर जाएगा. द ओनली प्रॉब्लम इनके बर्थ चार्ट में जो है, इनकी कुंडली में चंद्र शनि एक दूसरे के सामने है, तो विष योग बन जाता है. कर्क राशि है इनकी, शनि भी मकर राशि में बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी डिसीजन में और रिलेशनशिप में इंसान को काफ़ी बड़ी सेटबैक्स आती हैं. तो दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से फिर हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते समटाइम. So then Premji, what would you recommend for her to do? इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए. मंडे के दिन शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाना चाहिए, जिससे जो है क्या कहते हैं मून का जो इम्पैक्ट है, विष योग जो है वो ख़त्म हो जाए. फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त इनको जो है फल फ्रूट जूसेस लेने चाहिए, जिससे इनकी लाइफ पॉजिटिव हो जाए. और इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में, उसको किसी भी वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जो इनको लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए. Thank you, Premji. So Premji is letting you know that he feels a job that you're in, which is the government job, is a right job for you. You will do very well because he sees money, finances, success. So stick to what you're doing, and of course he sees marriage as well for you in the future. And as long as you do the remedies, you'll be very successful. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand the rest of the zodiac signs from Premji. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. So Premji, what about Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए वेरी स्टेबल वीक है. आप स्लोली एबल टू अचीव करेंगे अपने गोल्स को. खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, पर ज़्यादा स्ट्रेस मत करिएगा इस चीज़ को लेके. हार्ड वर्क से आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी. कैप्रिकॉर्न और मकर राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं. किसी तरह की भी इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा.
ये अच्छा समय है टू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, और आप अच्छा बैलेंस बना के रखेंगे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। Aquarius. एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी बेनिफिट होगा उनको अपनी एजुकेशन और अपने एग्जामिनेशन में। ये अच्छा टाइम है। जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे। कुछ लोग जो मित्र मिलके आप लोग नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये अच्छा समय है कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालें और रिलैक्स करें और सोशलाइज भी करें। And Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, अपने काम को बिल्कुल भी, अपने प्रिंसिपल को भी बिल्कुल डाइवर्ट मत करिएगा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। आप अचीव करेंगे सक्सेस जो भी आप काम कर रहे हैं। इट्स ए गुड वीक फॉर फाइनेंशियल गेन, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को लेके। Thank you, Premji. You came to the show and helped all the viewers understand how important it is not only to be compatible in business but also in marriage. You need to look at house number 7 for any kind of partnership, because that's a house for marriage and partnership for businesses. And of course, do the gun match before getting married. There are other remedies that Premji has mentioned that can be done if you're already in an existing business and you see it's not doing very well. But if you have any more further questions for this topic or anything else, you can email us at prem@premjyotish.net, and you can also send us your video clip of your email which is troubling you, and Premji will give you his remedies and solutions right here on this show. But time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.